ہے ممکن میرے خیالوں سے، یہ افتخار تیرا ہے کہ میرے عرش مقام تو ہم کلام رہا ہے زمین والوں سے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پہلا سیشن بحسن خوبی تکمیل کو پہنچا، جس میں کئی معزز ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس سیشن کے آغاز میں ہم سب سے پہلے ایوان صدارت کے لیے چند اساتذہ کرام کو بلانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب، پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ مقبول شکر الواری کے اس کشمیری شعر کی عملی تفسیر ہیں کہ ہجومس منزدشس مرکز زمانک سخن گھلس اندر برزلے مینی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر اعجاز اشرف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اسٹیج کو رونق بخشیں، زینت بخشیں۔ ڈاکٹر اعجاز اشرف صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہ وہ کریں بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں خوشبوؤں کے شاعر جناب ستیش ومل صاحب کو۔ آپ کشمیری اور اردو اور ہندی کے بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین نقاد بھی ہیں۔ ان پر اگر ہم کہیں کہ یہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ تو آخر پر میں دعوت دیتی ہوں استاد محترم پروفیسر الطاف انجم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہیں۔ ان کے لیے ان کی نظر یہ شعر کہ اکڑ کر وہ نہیں چلتے جنہیں فن پر مہارت ہو، سراہی سرنگوں ہو کر بھی بھر دیتی ہے پیمانے۔ اس سیشن میں کئی مقالہ نگار اپنے مقالات پیش کریں گے۔ کچھ کتابوں پر تبصرے بھی پیش کیے جائیں گے جو پہلے سیشن میں رہ گئے تھے۔ مقالہ پیش کرنے کے لیے میں سب سے پہلے جس مقالہ نگار کو دعوت دینا چاہوں گی وہ اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی تحریروں سے جانے جاتے ہیں۔ فارسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور اردو زبان پر بھی خاص دسترس رکھتے ہیں۔ میری مراد محمد مقبول فیروزی صاحب سے ہے کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں ویسے کوئی نہ عالم ہوں، نہ نقاد ہوں، نہ محقق ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا دانشجو ہوں، تو مقالہ پڑھنا نہیں تھا۔ تصوف ہوتا، اقبالیات ہوتا تو میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں ہمیشہ۔ تو یہ ایسے مقالات لکھنا میرے لیے کاریہ دارد والا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر پھر بھی لکھ ہی دیا۔ تو سب سے پہلے میں غلام نبی کمار صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ایسی تقاریب کا انعقاد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، مگر میں جانتا ہوں ان کی ان کی نبض پر، ان کی رگوں پر مطلب میری دسترس ہے۔ میں ان کو دلی سے جانتا ہوں، وہاں ہم پروگرام اکثر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں جو جذبہ ہے اردو، خاص طور اردو نثر کے بارے میں، وہ قابل تعریف ہے۔ بہت ہی اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید حافظ شیرازی نے انہی کے لیے کہا تھا، ہرگز نہ میرد آن کی دلش زندہ شد بھی عشق، ہرگز نہ میرد آن کی دلش زندہ شد بھی عشق، سب تست بر جریدہ عالم دوامی ماں، سب تست بر جریدہ عالم دوامی ماں۔ خیر آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں ہر جگہ بات ہو رہی ہے اردو زبان خطرے میں ہے، اردو نثر ختم، سب کچھ، مگر میں ایسا ماننے والا نہیں ہوں۔ تو
उस तनाजुर में मैंने लिखा है उर्दू, कश्मीर में उर्दू नसर आज और कल। तो दुनिया की दीगर तरक्की याफ्ता ज़बानों की तरह उर्दू भी एक तरक्की याफ्ता ज़बान है जो मुल्क और बैरूनी मुल्क तमाम मशहूर दानिशगाहों में पढ़ाई जाती है। हमारी रियासत में उर्दू को सरकारी ज़बान होने का शरफ हासिल है। यह ज़बान हमारी दीनी, अखलाकी, रूहानी और तमद्दुनी जज्बात से वाबस्ता है। उर्दू ज़बान के मंजूम और मंसूर अदब में हमारे रूहानी और तमद्दुनी खजाने पोशीदा हैं, जिनकी वजह से उर्दू ज़बान के लिए एक आमाजगाह कश्मीर उर्दू ज़बान के लिए एक आमाजगाह की हैसियत रखता है। मोहम्मद यूसुफ टेंग लिखते हैं इन्वर्टेड कामाज में, उर्दू बहुत अरसे तक रियासत जम्मू कश्मीर में अहम तरीन तहजीबी और समाजी रोल अदा करती रहेगी। ब्रैकेट बंद। जहाँ तक असर जदीद असर हाजिर में उर्दू नसर निगारी का ताल्लुक है, हमारे यहाँ अच्छी खासी तादाद उर्दू नसर निगारों की मौजूद है जो नसरी फन पारे लिखकर उर्दू अदब के दामन को वसी से वसी तर करने में लगे हुए हैं। अफसानवी अदब, अफसाना हो या नावल, कालम नवीस हो या इंशाइया, तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन हो या सूफियाना मौज़ूआत, ड्रामा हो या सफ़रनामे, गर्जे के हर सिनफ में नसर निगार लिख रहे हैं और उर्दू दुनिया में अपना नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। उर्दू ज़बान और अदब को आलमी सतह के मयार तक पहुँचाने में जो इदारे या अंजुमनी असर हाजिर में काम कर रही हैं, उनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू, इकबाल इंस्टीट्यूट कश्मीर यूनिवर्सिटी, कल्चरल एकेडमी, जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड, जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी काबिल जिक्र है। रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन भी उर्दू ज़बान अदब की खिदमत में अपना रोल अदा कर रहा है। कुछ अखबारात और रसाइल भी उर्दू ज़बान अदब की खिदमत में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें रोज़नामे कश्मीर उज़्मा, रोज़नामे तामील इरशाद और नगीरा इंटरनेशनल काबिल जिक्र है। कहा जाता है कि हर गोपाल खस्ता की गुलदस्ते कश्मीर कश्मीर में उर्दू नसर की पहली किताब है। तब से अब तक उर्दू नसर का सफ़र जारी है। 20वीं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, थोड़ा आगे आऊंगा क्योंकि मैं 21वीं सदी की तरफ आ रहा हूँ। 20वीं सदी के निस्फ आखिर में उर्दू नसर के जुल्फ़-खाल को सजाने का काम मीर गुलाम रसूल नाज़की, शाहज़ोर कश्मीरी, तना अंसारी और तालिब कश्मीरी वगैरह ने अंजाम दिया। उनकी नसर सलीस और शीरीन होने के साथ साथ दिलकश भी है, जिसको पढ़कर कारी मुतासिर हुए बिना नहीं रहता। जदीदियत के ज़ेर असर जिन लोगों ने उर्दू नसर लिखी उनमें हामिदी कश्मीरी, हकीम मंजूर, रफीक राज और रुखसाना ज़बीन भी शामिल है। उनके अलावा मोहम्मद ज़मान आज़ुर्दा और मजीद मुज़मर ने भी अच्छी और मयारी नसर लिखकर उर्दू अदब में अपना नाम रोशन किया। उर्दू नसर की तमाम अस्ताफ में हमारे नसर निगारों ने अच्छे नसरी फन पारे तख्लीक किए और कारी इनसे दाद तहसीन हासिल की। जहाँ तक उर्दू में अफसानवी अदब का ताल्लुक है, हमारा बेशतर नसरी सरमाया इसी सिनफ में मौजूद है। कश्मीर में उर्दू अफसाने का सफ़र रूमानी और रिवायती अफसानों से हुआ, जिसकी मिसाल प्रेम नाथ परदेसी के अफसानवी मजमूए शाम सहर है। तब से अब तक उर्दू अफसाने ने कश्मीर में बहुत से दुश्वार गुजार मराहिल तय किए और आज शुक्र है अल्लाह का कि हमें हर महीने एक या एक से ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प अफसानवी मजमूए पढ़ने को मिलते हैं, जिससे बखूबी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे अफसाना निगार बहुत ही मेहनत और अरख रेजी से अपनी तख्लीकात बरोए कार लाने में संजीदगी से काम कर रहे हैं। असर हाजिर में जो अफसाना निगार उर्दू के आसमानी अदब पर दरख्शान नजर आ रहे हैं, उनमें ये कुछ नाम दिए, किसी का नाम रह गया तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो उनमें नूर शाह, वाशिद सईद, दीपक मुदकी, गुलाम नबी शाहिद, शाहिद दिल्लवी, रियाज तवहीदी, तरानम रियाज, शाहजादा बिस्मिल, वाजिदा तबस्सुम, नीलोफर नाज नाहवी, जाहिद मुख्तार, डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक, राफिया वली, तारिक शबनम, राजा यूसुफ, दीपक कंवल, तबस्सुम बिनत रशीद, नासिर ज़मीर, सलीम सालिक, इसार कश्मीरी, राजा नजर बुनियारी, मनोज शेरी, मुश्ताक मेहदी, जान मोहम्मद आज़ाद, डॉक्टर निखत, शेख बशीर और जुबैर कुरैशी वगैरह काबिल जिक्र हैं।
जहां तक नूर शाह के अफसानों का ताल्लुक है, उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल हो चुके हैं। उनके कई अफसानवी मजमूए छप चुके हैं, जिनमें वीराने के फूल, एक रात की मलिका, बेगाठ की नाव बहुत मशहूर है। इसी तरह हमारे एक और चोटी के अफसाने निगार वाशी सईद के अफसाने भी पूरी उर्दू दुनिया में मशहूर हैं। उन्हें अफसाने के फन पर पूरी कुदरत और दस्तरत हासिल है। उनके अफसानों में भी नूर शाह के अफसानों की तरह हर किस्म के मौज़ूआत मिलते हैं। वाशी सईद के अफसानी मजमू में सदक वापस जा रही है और कमवार अल्फाज का जजीरा बहुत ही दिलचस्प है। यह काबिल जिक्र है कि नूर शाह और वाशी सईद पर PhD डिग्री के लिए मकाले लिखे जा रहे हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि अफसानवी अदब में उन दोनों का नाम कितना रोशन और मशहूर है। इसी तरह हमारे एक और अफसाना निगार, जिन्हें हम प्यार से आज़ादी के नाम से पुकारते हैं, मेरा मतलब है गुलाम नबी शाहिद, उनका ये अफसाना बहुत मशहूर हो चुका, आज़ादी। उनका एक अफसानवी मजमू ऐलान जारी है, भी बहुत मशहूर हो चुका है। रियाज तफीज़ी के अफसानवी मजमूए काले पेड़ों का जंगल और काले देवों का साया, दीपक बुदकी के अफसानवी मजमूए अधूरे चेहरे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा आदमी, जाहिद मुख्तार के 2 मजमूए जहलम का तीसरा किनारा और तहरीरी, तरन्नुम रियाज के अफसानवी मजमूए ये तंग ज़मीन और अबाबीली लौट आएंगी, शाहजादा बिस्मिल का अफसानवी मजमूआ खुशबू की मौत, शाहिद दिलवी का मजमूआ यादों के फूल, नीलोफर नाज नहवी के 2 अफसानवी मजमूए खामोश आसमान और चिनार के बर्फीले साये, वाजिदा तबस्सुम का अफसानवी मजमूआ डोलती नया वगैरह कश्मीर के अफसानवी अदब में एक बेशबहा इजाफा है, जिनको कारी ने पढ़ा और सराहा। जहाँ तक कश्मीर में लिखी गई उर्दू नावलों का ताल्लुक है, इस मैदान में भी हम किसी से कम नहीं। हमारे नावल निगारों में नईमा महजूर का नावल दहशत ज़ादी, नूर शाह के 2 नावल झील के काले साये और पायल के जख्म, तरन्नुम रियाज के 2 नावलेट मूर्ति और बर्फ आशना परिंदे, डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक का नावल पैगाम, शाहिद दिलवी का नावल प्यास और प्रोफेसर शफक सोपोरी का नावल नीलमा हमारे नसरी अदब में एक बेशकीमत इजाफा है। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ अफसाने के मुकाबले में नावल बहुत कम लिखे गए हैं। हमारे ड्रामा निगारों ने भी उर्दू नसरी अदब में कुछ इजाफा किया है और कुछ अच्छे ड्रामा तहरीर किए हैं, जिनमें नूर शाह का ड्रामा सफ़र ज़िंदगी का, अशरफ आदिल का सफ़ेद खून और मसीहा, बशीर शाह के 2 ड्रामे बारिश का पहला कतरा और सफ़र ज़िंदगी का, मुश्ताक मेहदी के ड्रामे ख्वाब और काले नगर, मोहम्मद अमीन भट्ट का ड्रामा रूह की आहट, मनोज शीरी का ड्रामाई मजमुआ बिखरे बिछड़े वगैरह ऐसे ड्रामों में शुमार होते, इन अच्छे ड्रामों में शुमार होते। इनके अलावा बशीर दादा, राजा यूसुफ, शकील आज़ाद और डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक के स्टेज और टेली ड्रामे भी बहुत मशहूर हैं। जहाँ तक तहकीक और तनकीद का ताल्लुक है, इसमें कई बरगुज़िदा अदीबों, नकादों और मुहक्किकों ने गिरान बहा काम किया है। उनके काम को मैं यहाँ नहीं, क्योंकि मुझे फिर हफ्ता मन कागज चाहिए उसके लिए, कि इतना काम हो चुका है। तहकीक और तनकीद में कम, मगर तहकीक में बहुत काम हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, जिनको मैं जानता हूँ, और आज भी ये काम शद्दुमद से जारी है। इस मैदान के शाह सवारों में जो नाम सहरी फिरिस्त है, उनमें मोहम्मद यूसुफ टेंग, हामिदी कश्मीरी और अकबर हैदरी शामिल है। जहाँ तक तहकीकी तसानीफ और मज़ामीन का ताल्लुक है, इस मैदान में जिन अदीबों और दानिशवरों ने अपना लोहा मनवाया है, उनमें गुलाम नबी ख्याल, प्रोफेसर बशीर अहमद नहवी, प्रोफेसर मरगूब बानहाली, प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबाई, डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई, मोहतरमा तस्कीना फाजली, अल्ताफ अंजुम, मुश्ताक हैदर, कौसर रसूल और गुलाम नबी कुमार के नाम काबिल जिक्र हैं। इंशाया निगारी में भी हमारे अदीब और दानिशवर आलमी सतह पर शोहरत पा चुके हैं, जिनमें मोहम्मद जमान आज़ुर्दा का नाम काबिल जिक्र है। आज़ुर्दा साहब को इंशाया निगारी में एक खास मकाम हासिल है और वो इस फन की बारीकियों और हुनर से बखूबी वाकिफ हैं। उनके इंशायों के कई मजमूए छप चुके हैं, जिनमें गुबारी ख्याल, कांटे और गुलदस्ता भी शामिल हैं। कालम निगारी के मैदान में
शमीम अहमद शमीम के बाद मीर गुलाम रसूल नाजकी, जावेद आजर, अफजल रहमान मुखलिस, नूर शाह, सलीम सालिक, डॉक्टर नजीर मुश्ताक, शहजादा बिस्मिल और जुबैर कुरैशी वगैरह ने अच्छे और मयारी कालम निगार होने के सबूत पेश करके उर्दू नस्र के दामन को वसअत बख्शने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस सिलसिले में शहजादा बिस्मिल की रक्स बिस्मिल, सलीम सालिक की सरीर खामा और डॉक्टर नजीर मुश्ताक की सेहत कामिल कालमों पर मबनी किताबें बहुत मशहूर हैं। उर्दू नस्र में कश्मीरी अदीबों और दानिशवरों ने कई सफ़रनामे भी तहरीर किए हैं, जिनमें हामिदी कश्मीर का भारतीय अदीबों के साथ पाकिस्तान का सफ़र, अंजुमन उर्दू, गुलाम नबी ख्याल का सफ़र इराक, ख्वाजा सनावल्लभ भट्ट का सफ़रनामा पाकिस्तान और खालिद परवेज़ का सफ़रनामा जलावतन। ये बहुत अच्छा सफ़रनामा लिखा है खालिद परवेज़ ने, मुझे बहुत पसंद है, ये काबिल ज़िक्र है। इन सब असनाफ और मौज़ूआत के अलावा तसव्वुफ़ पर भी कई गिरानुमाया किताबें लिखी गई हैं, जिनमें नाचीज़ की किताब तसव्वुफ़ पर इस्लामी और ईरानी असरात भी शामिल है। मंदरजा वाला तफसील को मद्देनजर रखते हुए मुझे यह कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि 21वीं सदी में कश्मीर में जो नसर उर्दू ज़बान में लिखा जा रहा है वह काबिल कदर और मयारी नसर है। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि कश्मीर में उर्दू नसर का मुस्तकबल ताबनाकार रोशन है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ैज़ है साकी। वाकई उर्दू अदब का मुस्तकबिल शानदार है इंशाल्लाह यहाँ पर, बशर्त ये कि आप जैसे अदब नवाज हजरात की रहनुमाई हासिल हो। इसके बाद मैं बरकत अली लट्टू को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और अपना मकाला पेश करें। बरकत अली लट्टू, बरकत आप आ जाएं और अपना मकाला पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा सदूर साहिबान, असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21वीं सदी में उर्दू नस्र एक वसी मौजू है। मैंने जब इस पर गौर व फिक्र किया तो मेरी नज़र 21वीं सदी के एक अजीम मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर अकबर हैदरी पर ठहरी। तो उनके जो तहक़ीक़ी कारनामे हैं उन पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। फ़ारसी ज़बान व अदब के तालिब इल्म होने की हैसियत से निज़ामी गंजवी के इस शेर से मैं मकाले की इब्तिदा कर रहा हूँ। ए नाम थू बेहतरीन सर आगाज़, बी नाम थू नामा खै खुनामबाज। सरजमीन कश्मीर सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों, तमद्दुनों, इल्म अदब और मज़ाहिब का गहवारा रह चुका है। इस वादी में वक्तन फ़वक्तन बड़े बड़े मजहबी रहनुमा, दीनी पेशवा, सूफिया, अवलिया किराम, रेशी, आबिद, शायर, मुसन्निफ, फ़लसफ़ादां, ज़बानदां, अदीब, तारीख़दां, मुहक्किक और बरगुज़िदा हस्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने यहाँ के इल्म अदब, तहजीब व तमद्दुन को हर वक्त माला माल किया। इन शख्सियतों में एक नाम प्रोफेसर अकबर हैदरी का भी है। अकबर हैदरी बैक वक्त मशहूर आलिम, मारूफ मुहक्किक, नकाद, तनकीद निगार, ज़बानदान है। प्रोफेसर अकबर हैदरी की वलादत 13 अक्टूबर 1929 ईस्वी में श्रीनगर में हुई। इब्तिदाई तालीम श्रीनगर में हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रुख किया। अलीगढ़ की फ़िज़ा ने हैदरी को बारीक बीन और बेबाक मुहक्किक बनाने में अहम रोल अदा किया। यहाँ के इल्मी व अदबी माहौल और पढ़ने लिखने के मुअतदल माहौल ने इस चिंगारी को ऐसी हवा दी कि कश्मीर का ये तालिब इल्म बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल करने में कामयाब हुआ। 1960 ईस्वी में हैदरी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मीर अनीस बहसत रज़मिया शायर के उन्वान से डॉक्टरेट और 1973 ईस्वी में अवध में उर्दू मरसिया का इर्तिका पर डीलेट की डिग्री हासिल की। प्रोफेसर अकबर हैदरी की 80 से ज़ायद तसानीफ़ हैं, जिनमें बकौल उनके फ़र्जंद नसफ दर्जन किताबें दौरान नकल मकानी ज़ाया हो गई।
انیس شناسی ہو یا دبیر شناسی، غالبیات ہو یا اقبالیات، ڈاکٹر اکبر حیدری کی تحقیقی کتابیں اور مضامین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اکبر حیدری کی ان تحقیقی فتوحات کے پس منظر میں ان کے عالمانہ بصیرت، ذوق کی تحقیق اور عرق ریزی کار فرما ہیں۔ وہ ایک ایسے بے باک محقق بن کر سامنے آئے جنہوں نے جہاں محسوس کیا معاصر محققین سے اختلاف کیا اور اپنی علمیت اور گہرے مطالعے کی بدولت اپنی بات کو ثابت بھی کیا۔ ناصر مرزا اس سلسلے میں یوں لکھتے ہیں، کوٹ، اکبر حیدری کا مطالعہ وسیع تھا، ان کی نظر گہری تھی، مصلحت کے وہ قائل نہیں تھے، ان کی عالمانہ گرفت کی زد میں مشاہیر وقت بھی آئے اور اہم علمی و ادبی مسندوں پر فائز شخصیات بھی، انکوٹ۔ ڈاکٹر اکبر حیدری کے اندر تحقیق و تنقید اور رسائی ادب کا ذوق کود کود کر بھرا تھا۔ ڈاکٹر ملک اس سلسلے میں لکھتے ہیں، کوٹ،